Yeah, hello everyone. So in this video we are going to discuss how to calculate cash flows for capital budgeting process. तो इस एक शॉर्ट सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जब कैपिटल बजटिंग करते हैं तो कई बार हमें सिचुएशंस जो दिए होते हैं, हमें प्रॉफिट्स दिए होंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन पैट हमें दिया हो सकता है, बट मेरे को कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के लिए मेरे को कैश फ्लोज की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि मैं प्रॉफिट्स को यूज करता हूँ. So in this short video, we will learn how to calculate cash flow after tax for capital budgeting process. Okay. So for that purpose, I have taken a very good question. Okay. तो पहले हम उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं and then we will analyze how to calculate cash flows for capital budgeting process and we will also calculate the net present value, and on the basis of net present value we will evaluate the project whether we should invest in that project or not. Okay. So this is the question that I'm going to discuss. No. Yeah. So as you can see on the screen, a company is considering a company is considering the proposal for taking up a new project which requires an initial investment of rupees 400 lakhs, okay, on machinery and other assets. The project is expected to yield the following earnings before depreciation and tax. This is very important. ठीक है, ये जो हमें earnings दिए हुए हैं, ठीक है, these are before depreciation and taxes. Okay. Next, the project is expected to yield the following earnings before depreciation and tax over the next 5 years. So in the first 2 years, the company will earn 160 lakhs, 160 lakhs. In third and fourth year, 180 and 180, and in the fifth year, 150 lakhs. The cost of raising the additional capital is 12%, and the assets have to be depreciated at the rate of 20% on written down value basis. तो जो assets पर depreciation लगेगा वो WDV के basis पर लगेगा, and the scrap value at the end of 5 year is nil because यहाँ पर ये zero दिया हुआ है, and income tax rate is applicable on the company is 50%. And these are the values, ठीक है, जो हमें present value factors इस पर दिए हुए हैं 10% to 16%. Okay. So you are required to calculate the net present value of the project and advise the management to take appropriate decision. Okay, and also calculate the internal rate of return. So in this video we will calculate cash flow after tax and NPV. So first of all, you have to see in question what you have given, whether you whether the question is provided the cash flows or the earnings before depreciation and taxes. So in this question, okay, earnings before interest and taxes are given, but for the capital budgeting process, we need cash flows. So it means we have to convert these earnings into cash flows because earnings are different from cash flows. Because जब आप earnings निकालते हो, ठीक है, और earnings भी हमको कौन सी चाहिए, earnings भी हमको चाहिए आफ्टर टैक्स, सॉरी, हमें जो कैश फ्लोज चाहिए वो आफ्टर टैक्स चाहिए, ठीक है. तो कैश फ्लोज का मतलब है जितने भी नॉन एक्सपेंडिचर्स आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं फॉर कैलकुलेटिंग अर्निंग, यू विल हैव टू एक्सक्लूड देम. आपको उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है. तो कैसे इसको हम सॉल्व करें, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है. सो क्वेश्चन में हमको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, सो फर्स्ट 5 इयर्स की इन्फॉर्मेशन मेरे को दी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है. एंड इसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरे को दिए गए अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस मेरे को यहाँ पर दिए हुए, ठीक है. सो अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, ठीक है. So in the first 2 year 160 lakhs, 160 lakhs, then in third year 180, 180, and in fifth year 150 lakhs. ये जो values मेरे को दिए हुए हैं that is in lakhs. Okay. So for imposing tax, मेरे को अगर टैक्स लगाना है तो पहले मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, मेरे को नेट इनकम निकालना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेता हूँ, डेप्रिसिएशन, ठीक है. अब डेप्रिसिएशन मेरे को क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, ठीक है. डेप्रिसिएशन बोला है कि 20% का डेप्रिसिएशन है
और वो भी WDV के बेसिस पर, रिटन डाउन वैल्यू के बेसिस पर। तो पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 400 लैक्स है, ठीक है। इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर का 20% के हिसाब से, दैट इज 80 रुपी। तो मेरा WDV कितना आ गया फर्स्ट ईयर के एंड में? मेरा WDV आ गया 320, ठीक है। ऐसे ही मैं सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा एट द रेट ऑफ 20%। ये जो वैल्यू रिड्यूस होकर आएगी, यही मेरा क्या है, यही मेरा WDV है। तो यहाँ पर 64, ठीक है। देन मेरा थर्ड ईयर का WDV आ जाएगा, थर्ड ईयर के लिए WDV, ठीक है। 320 माइनस 64, 256 फॉर थर्ड ईयर। अगेन डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 51.2, 51.2, ठीक है। देन 204.8 WDV फॉर फोर्थ ईयर। देन फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन at the rate of 20%, 40.96, 40.96. Now 163.84 WDV for last year. Then fifth year का depreciation again 20%, 32.76. Now 131.07, ठीक है। 08, you can do 08, है ना। So these are the depreciation values. So in the first year 80, then 64, then 51.2, 40.96 and 32.76, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ। In the first year depreciation is 80, you will have to deduct from the earnings before depreciation. Then 64, यहाँ पर 64 है। In the third year 51.2, 51.2, then fourth year 40.96, and in the fifth year 32.76, ठीक है। सो नाउ जो अभी आपका वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, कैन आई से EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। सो 160 माइनस 80, 80, देन 160 माइनस 64, 96, देन 180 माइनस 51.2, 128.8, 180 minus 40.96, 139.04, and 150 minus 32.78, 76, 117.24. Okay, so this is earning before tax. Now tax at the rate of 50%, because tax rate is 50%. Okay, so 50% is 40, then 48. Okay, in third year 128.8 into 0.5, that is 64.4, then 139.04 into 0.5, 69.52, then 117.24 into 0.5, that is 58.62. ओके, सो अभी आप इसको जब यहाँ से माइनस करेंगे, सो दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। सो सेम वैल्यू 40, 48, 64.4, 69.52, 58.62। ओके, अभी मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अभी मेरे को चाहिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो जो मेरा डेप्रिसिएशन है वो तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, मैंने उसको ऑलरेडी ऊपर माइनस किया हुआ है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एड बैक कर दूंगा। मेरे को अपनी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लेके आना है, यानी कैश इनकम आफ्टर टैक्स लेके आना है। तो मैं क्या करूँ, इस डेप्रिसिएशन को इसमें एड बैक कर दूं, बिकॉज डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऐड करूंगा इसमें डेप्रिसिएशन, ठीक है।
सो जो डेप्रिसिएशन के वैल्यूज हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, वी हैव टू एडिट बैक 80, 64, 51.2, 40.96, 32.76. Okay, so this is 120. This is a cash flow after tax. Cash flow after tax. ठीक है. Then 48 plus 64, that is 112. 64.4 plus 51.2, that is 115.6. 69.52 plus 40.96, 110.48. 58.62 plus 32.76, that is 91.38. So this is my cash flows after tax. ठीक है, ये कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स आ गया. तो अब मैं इनको यूज करूंगा एनपीवी पर्पस के लिए. अगर मेरे को एनपीवी कैलकुलेट करना है, बिकॉज क्वेश्चन में मेरे को रेट कितना दिया हुआ है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है दैट इज 12%, जिस पर मेरे को डिस्काउंटिंग करना है. ओके, तो मैं ये जो कैश, ये जो अर्निंग्स दी हैं, आई विल नॉट यूज दीज अर्निंग्स. आई विल यूज कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड नाउ. ओके, इनको मैं यूज करूंगा. ठीक है, तो चलिए एनपीवी हम जल्दी से कैलकुलेट कर देते हैं. यहीं पर ही कैलकुलेट कर देता हूँ. तो ये मेरे कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स हो गए. मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12%. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% पर, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%. सो कैलकुलेटर पर हम 1 डिवाइड बाय 1.12 करेंगे. सो दैट इज 0.892. 0.892. सेकंड इज 0.797. 797. थर्ड इज 0.711. फोर्थ इज 0.635. 635. नेक्स्ट इज 0.567. 0.567. इनका मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 120 into 0.892, 107.04, दैट इज हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे. 112 into 0.797, 89.26. 115.6 into 0.711, 82.19. 110.48 into 0.635, 70.15. 70.15. Okay, then 91.38 into 0.567, 51.81. 51.81. ठीक है, सो दीज आर द प्रेजेंट वैल्यू. सो प्लीज इनको ऐड कर लीजिए. 51.81 प्लस 71.15 प्लस 82.19 प्लस 89.26 प्लस 107.04. So these are 445 प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, मेरे को कैलकुलेट करना है एनपीवी. सो कहने से ये अप्रॉक्स मेरा कितना है? अप्रॉक्स 400 ही मैं इसको मान लेता हूँ. चलिए, ठीक है, मेरे को एनपीवी कैलकुलेट करना है. तो एनपीवी के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज 400 lakhs और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी मेरा कितना था? 400 lakhs. तो यहाँ पर मेरा एनपीवी कितना आएगा? 0. ठीक है, एनपीवी मेरा 0 कैलकुलेट होकर आ रहा है. अब यहाँ पर मेरे से पूछ सकता है कि आईआरआर क्या होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा. तो आईआरआर मेरा क्या होना चाहिए? अगर मेरा एनपीवी 0 आ रहा है तो यही मेरा आईआरआर भी होगा. आईआरआर मेरा 12% ही होगा, बिकॉज 12% पर जब मैं एनपीवी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर 0 आ रहा है. तो आईआरआर क्या होता है? आईआरआर इज द रेट एट विच एनपीवी कम्स 0. ओके, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट एट विच एनपीवी बिकम्स 0. जिस पर एनपीवी आपका 0 बन जाए जिस रेट पर, या यू कैन से द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो आईआरआर होता है. तो इस केस में जब मैंने 12% पर फैक्टर किया तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों सेम ही आ रहा है. तो इसका मतलब एनपीवी 0 होगा और आईआरआर भी मेरा 12% होगा. सो दिस इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ठीक है, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिकली मैं आपको बता दूं. ठीक है, कि अगर आपको बेसिकली अगर अर्निंग्स दी हुई है, यानी अर्निंग्स आपको दी हुई है, तो पहले तो अर्निंग्स आपको देखनी होंगी कि अर्निंग्स दी कैसे हैं. बिफोर डेप्रिसिएशन है. ठीक है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. ठीक है, तो आप इसको ऐसे ले लीजिए. पहले आप इसमें से माइनस करिए डेप्रिसिएशन, क्योंकि टैक्स लगाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना जरूरी है, तभी आपका नेट प्रॉफिट आएगा. ठीक है,
अब ये जो मेरा इनकम आया यहाँ पर, इस पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट, टैक्स माइनस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर टैक्स माइनस कर। अब मेरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, उसमें मेरे को ऐड करना है नॉन कैश एक्सपेंडिचर। और नॉन कैश एक्सपेंडिचर में यहाँ पर डेप्रिसिएशन है। ठीक है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, अगर मैं उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूं तो मेरे को CFAT मिल जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। और ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ही मेरे को एनपीवी में यूज करना है। ठीक है, कैपिटल बस्टिंग में यूज करना है। तो कैपिटल बस्टिंग में हमें प्रॉफिट्स यूज नहीं करने। कैपिटल बस्टिंग के लिए हमको क्या यूज करना है, कैपिटल बस्टिंग के लिए हमको कैश फ्लोज यूज करने हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, if you have not written down this question, okay, so you can take the screenshot. You can take the screenshot. Now you can take the screenshot. This is first step, basically calculation of depreciation. Okay, then second, we have calculated cash flows after tax. Okay, then NPV, then NPV. You can take the screenshot. This is how to calculate cash flow after tax. That will be used for NPV purpose. Okay, so thank you so much. We will meet you in the next session. Thank you so much.